देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी हमारे बीच पधार चुके हैं। जीआरएससी उनकी गरिमामय उपस्थिति से गौरवान्वित महसूस कर रही है। यहां उपस्थित सभी की ओर से जीआरएससी उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। Ladies and gentlemen, Honorable Raksha Mantri of India, Shri Rajnath Singh, and the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Subhendu Adhikari, have arrived. We are deeply honored by their esteemed presence on this occasion. On behalf of all present here, GRSC extends a very warm and hearty welcome to them. देवियों और सज्जनों, भूमि पूजन के इस महत्वपूर्ण समारोह के पारंपरिक भाग का शुभारंभ हम गणेश वंदना से कर रहे हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। अब मैं जीआरएससी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कमोडोर पीआर हरि से स्वागत संबोधन हेतु सादर अनुरोध करता हूं। Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji, Honorable Chief Minister of West Bengal Shri Shubhendu Adhikari ji, Chief Secretary Government of West Bengal Shri Manoj Agarwal, Secretary Defence Production Shri Sanjeev Kumar, Chairman and Managing Director Yandra India Limited Shri Venkatesh Iyer, other distinguished guests present here, friends from the media, ladies and gentlemen, a very warm, humid morning to each one of you. At the outset, may I, on behalf of Team GRSC, Team Yandra India Limited, and the Department of Defence Production, extend a very warm and hearty welcome to the Honorable Raksha Mantri on this auspicious occasion of Bhumi Pujan. Thank you, sir, for gracing this occasion to launch 5 facilities that we are confident will transform the defense manufacturing landscape of the nation and specifically West Bengal. We are also deeply honored by the presence of Shri Subhendu Adhikari, Honorable Chief Minister of West Bengal. Sir, for your visit and presence here is very important to GRSC. This is your maiden visit to GRSC, and we are the largest heavy engineering manufacturing company in West Bengal today. Secretary Defence Production has been the guiding figure behind all the expansion initiatives of the DPSUs. And today, both Team GRSC as well as Team Yandra India Limited are happy and proud that he is here with us to witness the kickstarting of these initiatives with this Bhumi Pujan.
we at GRSC firmly believe that GRSC has a special relationship with the Honorable Raksha Mantri. Since Sir took over the reins of the Indian Defence Establishment in 2019, GRSC has launched 22 vessels and delivered 25 warships. This kind of unprecedented execution rate not only reflect the growth and maturity of GRSC as a shipyard, but the entire indigenous warship building ecosystem of our nation. We were honored when Sir personally blessed 3 warships built by GRSC. INS Sandayak, India's largest survey vessel, was commissioned at the hands of the Honorable Raksha Mantri. He commissioned INS Himgiri, the first P-17 Alpha ship to be commissioned delivered from GRSC, and we also launched INS Dunagiri. Ladies and gentlemen, I'm happy to inform you that all these 3 platforms are in active service with the Indian Navy and doing the Navy and the nation proud with their exemplary performance. Incidentally, this venue where we are today must be considering itself singularly lucky, honored, privileged, and special, because just 5.5 months back, on 5th of March 2026, we had the honor of hosting the Honorable Raksha Mantri here, where he spent a couple of hours with us. Why I'm highlighting this is March has been a special month for GRSC, an exceptional month when we delivered 3 warships of 3 different classes on the same day. Again, an unprecedented milestone that shall go down in the history of indigenous warship building. Coming back to the Bhumi Pujan event today, the 3 facilities of GRSC are at a cost of approximately 2,670 crores, and the 2 production facilities of Yandra India Limited is at an approximate cost of about 750 crores. And both these put together, these 5 new facilities warrant an investment of nearly 3,420 crores. In addition to capability and capacity augmentation, this will also lead to employment generation in West Bengal on a large scale. I am confident that the project execution of this project post this Bhumi Pujan ceremony today will progress flawlessly, and on commissioning, these facilities shall boost the capabilities of not only GRSC and Yandra India Limited, but the entire defense manufacturing industry of India. I conclude by once again welcoming the Honorable Raksha Mantri, the Honorable Chief Minister of West Bengal, and all the distinguished dignitaries here for gracing this occasion to bless these initiatives of the Department of Defense Protection. Thank you. Jai Hind. हार्दिक धन्यवाद सर. Ladies and gentlemen, we now enter the most awaited segment of today's event, the Bhumi Pujan and virtual unveiling of 5 state-of-the-art facilities by Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh in the august presence of Honorable Chief Minister of West Bengal Shri Subhendu Adhikari. Imagine a powerhouse standalone shipyard on the eastern coast built to construct massive Supramax commercial vessels. Come, let's watch an inspiring video on the 2,500 crore mega project at Raichak that is set to position India as a global commercial shipbuilding hub. Ladies and gentlemen, I now request Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh to kindly press the button for the Bhumi Pujan of the 2,500 crore Raichak shipyard.
देवियों और सज्जनों, यह भारतीय समुद्री शक्ति का एक ऐतिहासिक लम्हा है। 2500 करोड़ के इस विशाल निवेश के साथ रायचक शिपयार्ड बड़े आकार के व्यावसायिक जलयानों के निर्माण में सक्षम एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में विकसित होगा। Ladies and gentlemen, let us turn our eyes to the screen to see how GRSE's 100 crore brownfield expansion at Timber Pond, Shalimar is restoring historic dry docks to boost shipbuilding productivity and speed up timelines for medium-sized vessels. Please enjoy this short documentary highlighting our growth plans for this facility. अब हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि 100 करोड़ के टिम्बर पॉन्ड शिप बिल्डिंग सुविधा के भूमि पूजन एवं फलक का अनावरण बटन दबाकर करें। Ladies and gentlemen, accelerating building timelines of medium-sized ships and empowering indigenous ship repair, Timber Pond restores heritage dry docks with cutting-edge gantry power, ensuring our fleet stays ready and undefeated. Ladies and gentlemen, kindly turn your attention to the screens for a quick glimpse of the Damodar shipbuilding facility, a 70 crore facility dedicated to constructing eco-friendly electric ferries and small ships for sustainable river transport. स्वदेशी इलेक्ट्रिक फेरी निर्माण के माध्यम से हरित नदी परिवहन का मार्ग प्रशस्त करने वाली दामोदर शिप बिल्डिंग फैसिलिटी के भूमि पूजन एवं फलक के अनावरण हेतु अब माननीय रक्षा मंत्री जी से पुनः अनुरोध है। The Damodar facility ushers in zero-emission electric ferries combining environmental sustainability with strong national self-reliance. Ladies and gentlemen, prepare to be amazed by sheer industrial power and Industry 4.0 precision. We now invite you to view a short audiovisual on YIL's new 3,000-ton hydraulic forging press, replacing legacy infrastructure to secure critical supply chains for heavy artillery and naval weaponry. MSF, a unit of YIL, is commissioning a new 3,000-ton open die forging press against its 2,650-ton press. The project will ensure reliable production of critical gun barrels and ordnance components while enhancing MSF's strategic defense manufacturing capabilities. The 277.59 crore rupees project is undertaken to meet the requirements of defense PSUs, Indian private and international defense industries. We now invite Honorable Raksha Mantri ji to press the button for the Bhumi Pujan of YIL's 3,000. That was the Bhumi Pujan for the YIL 3,000-ton forging press, ladies and gentlemen. भारतीय तोपखाने और सैन्य शक्ति की अटूट हुंकार 3,000 टन की यह प्रचंड फोर्जिंग प्रेस सेना के लिए गन बैरल और भारी गोला बारूद के निर्माण को अभेद गति प्रदान करेगी। Step into the future of advanced metallurgical engineering with our fifth and final new facility launch. Watch how YIL's cutting-edge radial forging plant at Ishapur shall drive self-reliance by producing indigenous 155 mm artillery barrels, super alloy forgings and frontier defense equipment entirely on Indian soil.
MSF, a unit of YIL, is establishing a new radial forging project to enhance indigenous production of defense gun barrels, forged aerial bomb bodies, and super alloy forgings. The facility will also manufacture 40,000 railway axles annually, reduce import dependence, and strengthen India's strategic manufacturing capabilities. This 473.84 crore rupees project is undertaken to meet the requirements of defense PSUs, railways, and nuclear energy sectors. यंत्र इंडिया लिमिटेड के रेडियल फोर्जिंग प्लांट के भूमि पूजन एवं फलक का अनावरण बटन दबाकर करने हेतु माननीय रक्षा मंत्री जी से पुनः विनम्र अनुरोध है। Ladies and gentlemen, forging the invincible shield of Indian defense armed with Industry 4.0 technology, this 473 crore radial forging plant shall make India completely self-reliant in super alloys, railway axles, and strategic bomb hardware. Ladies and gentlemen, it is our privilege to have Shri Subendu Adhikari, Honorable Chief Minister of West Bengal, with us today. May I now request Honorable Chief Minister to address the august gathering on this occasion. भारत माता की, भारत माता की। Most respected Defense Minister of our country and personally my guardian, respected Rajnath Singh ji, please accept my best regards from the core of my heart. आपका आशीर्वाद पूरा मुझे मिला, इसलिए पश्चिम बंगाल का 11 करोड़ जनता का काम करने का मौका भी मुझे मिला। मैं मुख्यमंत्री होने का बाद दिल्ली में आपका कोठी में मुलाकात हुआ था। मैं आपका आशीर्वाद लिया। उस दिन आपने मुझे कमिट किया, मैं तुरंत बंगाल आ रहा हूं और बंगाल को खड़ा करने के लिए इन्वेस्ट लेकर ही जा रहा हूं। आपने मैन ऑफ वर्ड, आपने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया। टुडे इज ए ग्लोरियस डे ऑफ बंगाल। 3,400 crore invested by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSC. It's a historic day. बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए मैं फिर एक बार मेरा नेता राजनाथ सिंह को मैं हृदय से वंदन करता हूं। The authority coming from the central government, हमारी भारत सरकार की सचिव, हमारी जीआरएससी की आधिकारिक और पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव जी है, मैं सबको स्वागत करता हूं। और यहाँ काफी बड़ा संख्या में हमारी एमएसएमई के साथ जुड़ा हुआ और जीआरएससी का साथ जुड़ा हुआ बहुत विशिष्ट आदमी है। सब लोग को मैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आई वुड लाइक टू कन्वे माय बेस्ट विशेस। प्रेस मीडिया का पत्रकार भी है, सब लोग को ये आज बड़ा आनंद का दिन है। रायचौक शिपयार्ड, टिम्बर पॉन्ड शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, दामोदर शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, रेडियल forging plant, 3000 T open die forging press, ये 5 प्रोजेक्ट आज भूमि पूजन हो गया है, उनका काम भी शुरू होने वाला है। टोटल 3,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। पिछले जो सरकार पश्चिम बंगाल में थी
वो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ट डिपार्टमेंट का साथ एक साथ काम करने का उनका कोई इच्छा भी नहीं था, इसलिए वेस्ट बंगाल ने बहुत सारा सफर किया। यू नो, वेस्ट बंगाल हैज मच मोर पोटेंशियलिटी। हियर इज लैंड, हियर इज ह्यूमन रिसोर्सेस, here is infrastructure, here is raw material and everything here. But now double engine is functioning with full speed. ये बंगाल में डबल इंजन नहीं था, सब था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार पश्चिम बंगाल जनता को जब मेट्रो का उद्घाटन के लिए उन्होंने आया, तब उन्होंने बताया द वेस्ट बंगाल इज ए वेरी हाई रिच स्टेट। स्वतंत्रता का पहले और उनका बाद भी पूरा देश का जो इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी है, सब में वेस्ट बंगाल का एक बड़ा रोल था। लेकिन 34 इयर्स कम्युनिस्ट और 15 ईयर टीएमसी का राज में खाली विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो, ये जो नेगेटिविटी था, आज 50 साल बाद वो खत्म हो गया है। अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ द नरेंद्र मोदी जी एंड माय लीडर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी, वी ऑल वर्क टुगेदर, बंगाल वी रीबिल्ड। जब 2047 में विकसित भारत होगा, तब पश्चिम बंगाल भी विकसित हो जाएगा। इस मंत्र का साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल में 106 दिन हुआ है नया सरकार का। हम लोग पहले जो काम किया देश का सुरक्षा के लिए, हमारी जो बॉर्डर वो अनफेंसिंग था, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था। बॉर्डर में बीएसएफ को जमीन देना ये हमारी एक देशभक्त की नाते हमारी ये फर्ज बनता है, लेकिन पिछले सरकार नहीं दिया। मुझे मालूम है, मैं बंगाल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बहुत साल से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, एलओपी, आप चीफ मिनिस्टर बन गया है आप सबका आशीर्वाद से। जब गृह मंत्री था हमारी राजनाथ सिंह जी ने, तब पहले चिट्ठी उन्होंने लिखा पश्चिम बंगाल सरकार को, या आप बॉर्डर का जमीन तो दे दीजिए बीएसएफ को। वो साल था 2016, पहले चिट्ठी उन्होंने भेजा, तब गृह मंत्री था महोदय, तब गृह मंत्री था, लेकिन अब तक जमीन नहीं दिया। आप सरकार आने का बाद हम लोग 90% जमीन ऑलरेडी हैंडेड ओवर टू बीएसएफ टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर। देश का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोग कर रहा है। संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है एक सरकार का, प्रदेश का, वो भी नहीं था। बीएनएस चालू नहीं था, सेंसस का काम बंद था, वो भी हम लोग शुरू किया। इन्वेस्टमेंट चाहिए, बंगाल को खड़ा करना चाहिए। बहुत बड़ा बेरोजगारी है। अभी तो जितना भी आप लोग यहाँ बिल्डर्स है, एमएसएमई है, जितना भी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सबको थोड़ा मौसम बदल रहा है। ये तो मौसम चल रहा है, आपको जो वेदर चेंज हो गया है। अभी बंगाल इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन होना चाहिए। मैं फिर एक बार राजनाथ सिंह जी को आभार प्रकट करता हूं। मैं उनको एयरपोर्ट से आते आते बताया आपका और भी कुछ काम बंगाल में करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कमिट कर दिया, आई विल डू एवरीथिंग। मैं बताया ये आप जैसे उत्तर प्रदेश को खड़ा किया, पूरा मदद किया, देश को तो करता ही है, पश्चिम बंगाल भी आपका है।
आपका पूरा सपोर्ट देना चाहिए। बंगाल नॉट ओनली द स्टेट ऑफ बंगाल, हमारी देश का कल्चरल डिवोशनल कैपिटल भी था। ये सब बदल दिया ये लोग। अभी बंगाल को पूरा खड़ा करने के लिए हम लोग एक साथ काम करेगा। आई वुड लाइक टू कमिटेड टू GRAC दैट वी विल वर्क टुगेदर। जमीन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जितना भी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, हम लोग एक साथ काम करेगा। दो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस, हमारी प्रदेश सरकार एक साथ काम करके एक GRAC इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा लैंड इनका पास है। ये एक साथ हम काम करेगा तो यहाँ 3,400 नहीं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला दिन में होने वाला है। मैं सबको फिर एक बार, पहली बार पश्चिम बंगाल का CM कोई प्रोग्राम में आया। ये बहुत दिन से गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर CM को तो बुलाता था, लेकिन CM नहीं आता था। पहली बार बहुत दिन के बाद CM ने आया सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम में, इसलिए मुझे इनवाइट किया। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और मैं राजनाथ सिंह जी को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया उनका डिफेंस आर्मी कैसे हमारी देश से ब्रह्मोस से लेकर कैसे मुंह तोड़ जवाब हमारी जो एनिमी है देने के लिए किस तरीके से हम लोग खुद आगे बढ़ रहा है। देश कैसे डिफेंस सेक्टर में वर्ल्ड में लीडरशिप बन रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अंडर द इंस्पायरेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, under the great leadership of the defense minister, we are now adding स्वामी विवेकानंद का एक मंत्र है, चरैवती चरैवती। राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व में डिफेंस चरैवती चरैवती जो मंत्र पर पूरा वर्ल्ड में आने वाला दिन में लीडरशिप देगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मेरा बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद। On behalf of Garden Reach Shipbuilders and Engineers and Yantra India Limited, sir, thank you so much for your inspiring words. देवियों और सज्जनों, हमारे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे बीच माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी स्वयं उपस्थित हैं। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। श्री शुभेंदु जी अधिकारी है, वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। श्री मनोज कुमार अग्रवाल, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। श्री संजीव कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन। डॉक्टर JP दास, DG ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विस। श्रीमती गरिमा भगत, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री विजय नामदेव राय जाड़े, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पर यहाँ पर PR हरी है क्या? कहाँ है? ओह, कमांडोर PR हरी, रिटायर्ड नहीं बोलूंगा, मिस्टर हरी, you are retired but not tired. CMD GRAC, Shri Vijay Kumar Iyer, Director Operations YIL and CMD Additional Charge, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, GRAC और YIL के सभी कर्मचारीगण, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज बंगाल की धरती पर डिफेंस के 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।
साथियों, आप जानते हैं कि बंगाल की हवा में एक नई खुशबू है। यह महक केवल बदलाव की नहीं है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद, इनके लीडरशिप में यहां गवर्नमेंट बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह केवल बदलाव की महक नहीं है, बल्कि यह महक है, विकास की महक है। यह यदि बदलाव है तो इन्वेस्टमेंट का बदलाव है, और यदि यह बदलाव है तो नई अपॉर्चुनिटीज का बदलाव है। ये सारे प्रोजेक्ट्स, जिन 5 प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है, ये इस बात के प्रमाण है कि जब इंटेंशन क्लियर हो, नीयत साफ हो, नीति सही हो और इन्वेस्टमेंट के प्रति कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो, तो विकास की गति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और साथियों, आज का दिन इसलिए भी यह विशेष है क्योंकि जहां कभी उद्योगों के लगातार वेस्ट बंगाल में बंद होने की खबरें आती थी, वहां आज नए उद्योगों के विस्तार की खबरें बराबर आ रही हैं। यही बदलाव बंगाल और बदलते हुए भारत की तस्वीर है। और वेस्ट बंगाल के वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, डूअर चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी के आने के बाद बंगाल में सब शुभ शुभ ही हो रहा है। और इसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी जी, मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, साथ ही यहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग, यानी सभी वर्गों के लोग अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वेस्ट बंगाल में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस की बुनियाद नेशनल सिक्योरिटी में निहित होती है। और इस नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मैं कह सकता हूं कि श्रीमान शुभेंदु सरकार ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। महज 45 डेज के भीतर, 45 डेज कितने हो गए? 106 डेज में के भीतर अपने कहे के अनुसार शुभेंदु जी की सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, वो काम तो 45 डेज में ही कर दिया था, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 1100 एकड़ भूमि इन्होंने उपलब्ध कराई। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए यहां की डबल इंजन की सरकार और यहां के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं बंगाल ने देश को बराबर नए नए विचार दिए हैं, आंदोलन भी दिए हैं, टैलेंट्स भी दिए हैं। वंदे मातरम जैसा राष्ट्र मंत्र भी यदि किसी ने दिया है तो वेस्ट बंगाल की धरती ने दिया है। अब समय आ गया है कि बंगाल भारत की विकास यात्रा को एक नई ऊर्जा दे और साथ ही एक नई गति भी प्रदान करे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज इस बंगाल की धरती पर हो रहा यह इन्वेस्टमेंट केवल आज का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आने वाले कल के भारत का यह इन्वेस्टमेंट है। बंगाल में और खासकर कोलकाता में मेरा अक्सर आना होता है, पर इस बार का आना मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज एक साथ 5 प्रोजेक्ट्स की एक साथ नींव रखी गई है। और आज का यह दिन केवल जीआरएसी नहीं, बल्कि अब तो नवरत्न जीआरएसी, मैं गलती से जीआरएसी बोल गया, जब भी बोलना चाहिए नवरत्न जीआरएसी। यंत्र इंडिया लिमिटेड बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यह भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह हमें हमारे विकसित भारत के संकल्प की ओर ठोस कदम बढ़ाने के लिए हम सभी को इंस्पायर भी करता है। साथियों, आज हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इनमें जीआरएसी की 3 नई शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, रायशक शिपयार्ड, टिम्बर पौंड हावड़ा शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, दामोदर कॉम्प्लेक्स शिप बिल्डिंग फैसिलिटी भी शामिल हैं। और इसके साथ ही यंत्र इंडिया लिमिटेड की 2 अत्याधुनिक मेटलर्जिकल फैसिलिटी, 3000 टन क्षमता वाली हाइड्रोलिक ओपन डाई फोर्जिंग प्रेस और रेडियल फोर्जिंग प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। और ये 5 प्रोजेक्ट्स हमारी आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की भावना को बल देने वाली हैं।
साथियों, बंगाल की धरती हमेशा से भारत के रेनेसां यानी पुनर्जागरण, हार्ड वर्क और नेशनलिज्म की मधुर भाव की बराबर साक्षी रही है यह पश्चिम बंगाल की धरती। और यह धरती किसी जमाने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भारत के अंदर एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाती थी। और आज फिर एक बार यह धरती नए इंडस्ट्रियल रिनासा की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जीआरएसी और यंत्र इंडिया लिमिटेड जैसे संस्थान इस बात के प्रमाण हैं कि बंगाल का इंडस्ट्रियल बेस फिर से मजबूत हो रहा है। यहां से शुरू होने वाले ये सारे प्रोजेक्ट्स डिफेंस प्रोडक्शन को तो ये बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ एमएसएमईज, एलाइड इंडस्ट्रीज और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। और एक तरह से देखें तो ये प्रोजेक्ट्स बंगाल की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के नए चैप्टर के रूप में सामने आने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सप्तधारा की बात की थी, आप लोगों ने सुना होगा। उन सप्तधारा में से एक प्रमुख धारा रक्षा क्षेत्र का भी उन्होंने उल्लेख किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब हम विकसित भारत बनेंगे तब हमारा यह डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम इस क्षेत्र में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रह सकते और हमारी अपनी स्वदेशी कंपनियों और रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही इस क्षेत्र में पूरी तरह से डोमिनेंस हासिल करना ही होगा। और आज के पांचों प्रोजेक्ट्स उसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। साथियों, जीआरएसी से मेरा गहरा जुड़ाव रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मुझे कई बार आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला है और आप लोगों से मिलकर मैंने ये देखा है कि आपका शिपयार्ड किसी भी चुनौती को स्वीकार करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ हमेशा तैयार हमको दिखाई दिया है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, इस शिपयार्ड में एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी भी निर्मित हुई है, जिसे इसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। जीआरएसी ने अब तक 800 से अधिक वेजल्स बनाए हैं, 800 से अधिक वेजल्स बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी आत्मनिर्भरता के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, एक मिशन के साथ आप सब काम कर रहे हैं। यहां तक कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल बन रहे हैं उनमें 80% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट होगा। और यह दिखाता है कि हम विदेशी डिपेंडेंस को तेजी से कम कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर जीआरएसी को नवरत्ना स्टेटस मिलने पर भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। यह कोई सामान्य बात नहीं है नवरत्ना स्टेटस प्राप्त होना। आप लोगों ने यह करिश्मा किया है बंगाल की धरती पर। साथियों, यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL भी उतने ही गर्व से हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का पिलर बनकर खड़ा है। आज ईशापुर स्थित मेटल एंड स्टील फैक्ट्री में 2 नई मॉडर्न फैसिलिटीज का भी शिलान्यास हुआ है। इनमें एडवांस वेपन्स एंड स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स की क्रिटिकल सप्लाई चेन पूरी तरह से सिक्योर होगी। अक्टूबर 2021 में एग्जिस्टेंस में आने के बावजूद इतने कम समय में ही इस कंपनी ने जो भी हमारे प्रारंभ के चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को पार करते हुए लगातार फाइनेंशियल और रेगुलेटरी एक्सेलेंस भी हासिल किया है। ट्रेडिशनल गोला बारूद से आगे बढ़ते हुए YIL रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथियों, YIL ने MSF ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इन्वेस्टमेंट 1976 से चली आ रही पुराने सिस्टम को बदलकर इंडस्ट्री 4.0 कैपेबल प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करेगा। इससे हम और भी तेजी से स्वदेशी हथियारों के निर्माण की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, स्वदेशी हथियार हमारे लिए कितने जरूरी हैं
इसका उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को आपको मिला होगा। केवल भारत को ही नहीं, भारतवासियों को ही नहीं, सारी दुनिया को देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है। और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब्स, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और हमने यह साबित किया है कि आत्मनिर्भरता यह हमारी केवल पॉलिसी नहीं है। आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है। और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज जब मैं आप सभी के बीच इतने महत्वपूर्ण अवसर पर यहां उपस्थित हूं, तो मैं अपने कुछ विचार और भी आपके सामने साझा करना चाहूंगा। वह यह, आज जब हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में कैपेसिटी पैराडॉक्स को भी ध्यान में रखना होगा। कैपेसिटी पैराडॉक्स का विचार शिप बिल्डिंग की दुनिया में चल रहे एक बड़े बदलाव को समझने में मदद करता है। जैसे आप देखिए कि दुनिया भर में जहाजों की मांग लगातार बढ़ रही है, चाहे वह नेवल शिप्स हों, कमर्शियल कार्गो वेजल्स हों, ऑयल टैंकर्स हों, लॉजिस्टिक शिप्स हों, फिशिंग वेजल्स हों, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स हों या ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हो। हर कैटेगरी में डिमांड बढ़ रही है। समुद्री व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारी नौ सैनिक शक्ति का विस्तार भी तेजी से हो रहा है और समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, यानी डिमांड साइड पर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यूके, यूएसए, नीदरलैंड और फ्रांस जैसे ट्रेडिशनल जहाज बनाने वाले जो देश रहे हैं, उन्होंने कॉलोनियल एरा में शिप बिल्डिंग के बल पर ही अपनी कॉलोनी स्थापित की थी। लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में ये देश अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे अब कम करते जा रहे हैं। कम कर रहे हैं या कम हो रहा है, यह एक दूसरा विषय है, पर इतना जरूर है कि इनकी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे लेबर कास्ट का बढ़ना, जो नौजवानों की यह पीढ़ी है इस क्षेत्र में उनका नए आना, नई फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना और पुरानी शिप यार्ड्स का मॉडर्नाइजेशन न हो पाना। इसका नतीजा यह निकला है कि ग्लोबल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी में एक गैप पैदा हो रहा है। और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाज निर्माण में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, जब तक एक जहाज डिजाइन और डेवलपमेंट का उसका काम पूरा होता है, तब तक कई टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो चुकी होती हैं। एक छोटे जहाज को भी डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक आने में 5 से 10 साल लग जाते हैं, आप जानते हैं। बड़े वारशिप्स या एडवांस कमर्शियल वेजल्स के मामले में तो 15 to 20 ईयर्स तक का समय लग जाता है। इस बीच प्रोपल्शन सिस्टम्स, सेंसर्स, वेपन्स, ऑटोमेशन, ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी, सब कुछ काफी बदल जाता है। मतलब यह है कि जहाज बनने से पहले ही उसकी कुछ टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होती है। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने। साथियों, इन तीनों स्थितियों को यदि आप मिला दीजिए, बढ़ती डिमांड, घटती ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी, जब इन तीनों को मिलाएंगे तो एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग वैक्यूम पैदा हो रहा है, यह कहने में भी मुझे संकोच नहीं है। और यह वैक्यूम 3 क्षेत्रों में सबसे अधिक हमको देखने को मिल रहा है: डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ में। और यही वह गोल्डन पीरियड है, इसे भारत कैप्चर कर सकता है। और मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों के बल के आधार पर हम सब इसको कैप्चर करके ही रहेंगे। साथियों, पहली बात डिजाइन की करते हैं।
ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग नेशंस के पास जो डिजाइन एक्सपर्टीज थी, आज आप जानते हैं कि वह धीरे धीरे कम हो रही है। नई पीढ़ी क्षेत्र में कम आ रही है। दूसरी तरफ भारत के पास नई पीढ़ी के इंजीनियर्स की बड़ी संख्या है। आईटी टैलेंट्स भी हमारे पास हैं। स्टिमुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज भी हमारे पास है। हम वर्ल्ड क्लास शिप डिजाइन हब बन सकते हैं। और हम सिर्फ दूसरों के डिजाइन पर जहाज न बनाएं, बल्कि खुद नए डिजाइन तैयार करें, पेटेंट्स भी करें और दुनिया को एक्सपोर्ट करें। और यह पूरी तरह से संभव है, डुएबल है, बशर्ते इस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। दूसरी बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है। खास बात यह है कि शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ऑटोमेशन का स्कोप कम है। कई डेवलप्ड कंट्रीज लेबर इंटेंसिव शिप बिल्डिंग से पीछे हट रही हैं, क्योंकि वहां लागत बहुत बढ़ गई है और स्किल्ड वर्क फोर्स की भी वहां पर कमी है। हमारे पास इसके विपरीत स्थिति है। हमारे पास विशाल स्किल्ड वर्क फोर्स भी है, स्टील इंडस्ट्री हैं, हमारे पास एमएसएमई बेस भी है और अब नई टेक्नोलॉजी अपनाने की हमारे पास विल पावर भी है। यदि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मॉडर्न बनाएं और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर काम करें, तो भारत दुनिया का अगला बड़ा शिप बिल्डिंग हब बनकर रहेगा। और तीसरा क्षेत्र है एमआरओ, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। मैं इसे एक लो हैंगिंग फ्रूट मानता हूं। एमआरओ में न तो बहुत अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और न ही बहुत अधिक मैन पावर की जरूरत होती है। जहाज बनाने में जो लंबा समय और बड़ा पैसा लगता है, एमआरओ में कम से कम वह नहीं लगता है। बस क्वालिटी, डिसिप्लिन और रिलायबल टाइमलाइन की जरूरत होती है। यदि हम इंडियन ओशन रीजन में शिप रिपेयर और ओवरहॉल का हब बन जाएं, तो फॉरेन एक्सचेंज की बचत के साथ साथ हम हजारों की संख्या में रोजगार भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर सकते हैं। आज भी हमारे बनाए वारशिप्स दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट रीजन से होकर हमारी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखने में मदद कर रहे हैं। लेकिन एमआरओ के क्षेत्र में हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यह हमारी क्षमता है। मैं चाहता हूं कि जीआरएसी इस दिशा में विचार करे और जीआरएसी इस दिशा में भी अपने कदम आगे बढ़ाए। हालांकि आप सब पहले से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब हमें इन प्रयासों को गति देनी होगी और हमें अपने इन प्रयासों में तेजी लानी होगी। साथियों, आज का यह अवसर केवल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन ही नहीं है, यह ग्लोबल वैक्यूम को भरने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। जीआरएसी की रायशक फैसिलिटी आपको 200 मीटर लंबे वारशिप बनाने की क्षमता देगी। इससे आप अगली पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर्स के लिए भी बिड कर सकेंगे, जिन्हें नेवी भविष्य में बनाने की योजना भी बना रही है। टिम्बर पॉन्ड, हावड़ा और दामोदर कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटीज भी जहाज निर्माण की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करेगी। और साथियों, यंत्र इंडिया लिमिटेड की दोनों फोर्जिंग फैसिलिटीज भारी तोपों, नेवल वेपन्स और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हाई क्वालिटी मेटल्स भी तैयार करेंगी। इससे हमारे नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस और मैरीटाइम फायर पावर को भी सीधा बल मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहां पारस पत्थर की कल्पना की गई है। पारस पत्थर वह होता है कि जिस भी धातु को छू दे वो मेटल सोना बन जाता है। सुना होगा आपने। YAIL भी मैं समझता हूं कि हमारे लिए वह पारस पत्थर ही है। आपके संपर्क में भी जो मेटल आ जाता है, अंततः वह भी सोने से कम नहीं है। आपकी मेटलर्जिकल टेक्निक्स एवं फोर्जिंग टेक्निक्स द्वारा तैयार किया गया आयरन एवं एल्युमिनियम का मिलिट्री ग्रेड मेटल के रूप में विकसित होता है, जिसकी कीमत सोने से भी कहीं अधिक होती है। साथियों, यह सभी इनविसेस्ड प्रोजेक्ट्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं।
सीधे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े। और एक जहाज जब बनता है तो उसके साथ हजारों सपने भी आकार ले लेते हैं। जब हम अपने जहाज खुद बनाएंगे, स्वाभाविक है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। साथियों, जहाज निर्माण से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा और बड़ी संख्या में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। यह बंगाल के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की इकॉनमी को अब एक नई गति की आवश्यकता है। और मैं आश्वस्त हूं कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु जी अधिकारी का हर प्रकार का सहयोग आप सबको प्राप्त होगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जीआरएससी के पास 800 से अधिक जहाजों के निर्माण का एक बहुत ही एक्सपीरियंस है। आपके पास टेक्निकल नो हाउ है, आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स है और अब एक्सटेंडेड कैपेसिटी भी आपके पास होगी। आपको इसका पूरा उपयोग करना होगा। और जैसा मुझे बताया गया कि आप सभी नेवी के ऑर्डर्स के साथ साथ एक जर्मनी कंपनी के भी 12 कार्गो शिप्स भी आप बना रहे हैं। यह बिल्कुल हमारी मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की विजन के अनुरूप है। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट्स में अधिक एग्रेसिव बिडिंग करनी ही होगी। अब हमारी सोच यह नहीं होनी चाहिए कि भारत को दुनिया से क्या खरीदना है, हमारी सोच अभी यह होनी चाहिए कि हमें दुनिया को क्या देना है। आप पहले भी 2 बार शिप एक्सपोर्ट कर चुके हैं और कई फ्रेंडली नेशंस भारत की और नेवल शिप्स की मांग के लिए देख रहे हैं। मैं समझता हूं साथियों, यह अवसर जो हमको प्राप्त हुआ है इसे हमें भविष्य में खोना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि हमें कॉम्पिटिटिव रेट्स पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने होंगे। शुरुआत में प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम उसकी भरपाई कर देगा। और हमें यही अप्रोच रखनी होगी। हमें अपनी लागत को यानी इन्वेस्टमेंट को घटाना होगा, क्वालिटी हमको इंप्रूव करनी होगी और टाइमली डिलीवरी भी इंश्योर करनी होगी। तभी हम ग्लोबल कंपटीशन में खड़े हो पाएंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि क्वालिटी ऐसी कि दुनिया भरोसा करे, क्वालिटी ऐसी कि दुनिया भरोसा करे, कास्ट ऐसी कि दुनिया चुने और डिलीवरी ऐसी कि दुनिया बार बार ऑर्डर करे। साथियों, मैं जानता हूं आपके सामने चैलेंजेज हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वाइटल कंपोनेंट्स की आपूर्ति में कभी कभी तरह तरह की बाधाएं भी आती हैं और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी अभी उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होनी चाहिए थी। सरकार इन मुद्दों को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है और जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी, कई बाधाएं अपने आप हल हो जाएंगी, इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। यहां उपस्थित इंडस्ट्री कैप्टन से भी मेरा आग्रह है कि वे आगे आएं और इस यात्रा में वह भी भागीदार बने। यही समय है और यही सही समय है। समुद्री क्षेत्र के विकास पर जो जोर दिया जा रहा है, उसे देखते हुए आपको कभी भी प्रॉफिट की कमी नहीं होगी। और साथियों, आज के इन 5 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास इस बात का संकेत है कि हम अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को हर स्तर पर विस्तार दे रहे हैं। और यह केवल सरकार का प्रयास नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, हमारी एमएसएमईज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सभी की भागीदारी आवश्यक है। आप देखेंगे कि जो इन्वेस्ट आज आप करेंगे वह आने वाले वर्षों में कई गुना होकर अपने आप वापस आएगा। सरकार आपके साथ है और डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसे में सबको एक साथ इस सेक्टर में आना चाहिए। मैं जीआरएससी और यंत्र इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों, सभी इंजीनियर्स, सभी कर्मचारियों और अपने सभी श्रमिक भाइयों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी के सम्मिलित प्रयास से ही यह संभव हो रहा है और आने वाले समय में जीआरएससी
द ग्रेट जीआरसी के रूप में सामने आएगा, इसमें मुझे रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और आप कहेंगे तो इस जीआरसी का वह ऐसे हालात जिस दिन पैदा होंगे, इस जीआरसी का नाम बदलकर द ग्रेट जीआरसी रखने में मुझे संकोच नहीं होगा। मैं भारतीय नौसेना की भी सराहना करता हूं, जो स्वदेशी उत्पादों पर भरोसा कर रही है, और हमारे सारे तीनों फोर्सेस इंडिजिनस आइटम्स पर अब भरोसा कर रही हैं, और स्वदेशी जहाज निर्माण को भी इंडियन नेवी भी बराबर प्रोत्साहन दे रही है। यहां पर श्री संजीव कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, भी मौजूद हैं। आपकी लीडरशिप में डिफेंस प्रोडक्शन बराबर नई ऊंचाइयां छू रहा है। पूरी लगन के साथ हमारे संजीव कुमार जी लगे रहते हैं, और आपका एक इवेंट खत्म नहीं होता तब तक अगले इवेंट्स लाइन में तैयार रहते हैं। और इस 27 तारीख को इनके ही इवेंट में मुझे जाना है। फिर इस निष्ठा और समर्पण के लिए आप सराहना के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि पांचों प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे, और जीआरसी और वाईएल की टीमें इस चैलेंज को पूरी निष्ठा से पूरी करेंगी। मुझे पूरा भी भरोसा है कि आप सभी लोग मिलजुल कर इस यात्रा को सफल बनाएंगे। अंत में एक बार फिर इस आयोजन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद सर। May I now request CMD GRSC to honor Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji with a memento. अब यंत्र इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि वे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। May I now request CMD GRSC to honor Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Subhendu Adhikari, with a memento. अब यंत्र इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि वे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। I now invite CMD Yantra India Limited to deliver the formal vote of thanks. शोभाई के नमस्कार। ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, Honorable Chief Minister of West Bengal Shri Subhendu Adhikari ji, Chief Secretary of West Bengal Shri Manoj Kumar Agarwal ji, Secretary Defence Production Shri Sanjeev Kumar ji, DG Ordnance Shri Depi Das, Joint Secretary Land Systems Dr. Garima Bhagat ji, Joint Secretary Naval Systems Shri Vijay Vesade ji, my colleague, I would say now we are all colleagues because all DPSUs are coming together within this new government. So CMD GRSC, Commodore PR Hari, and as Raksha Mantri said, never tired, not retired but never tired. Distinguished dignitaries, senior officers of Ministry of Defence and Government of West Bengal, senior management of GRSC and Yantra India Limited, especially the executive directors and CGMs of the 5 projects which was inaugurated by the Raksha Mantri today, and their respective teams who have joined us virtually, representatives of the Indian Armed Forces, industry veterans, MSMEs, ladies and gentlemen. It's my proud privilege today and a big honor to propose the vote of thanks on this momentous occasion on both of us, YL and GRSC. At the very outset, I extend my deepest gratitude to Honorable Raksha Mantri
for gracing this occasion with his august presence and inaugurating these 5 important defense projects at GRSE and Yantra India Limited. India is basically divided into 2 parts. The upper part, which has a boundary full of land, and the lower part, which is basically covered by the sea. So the importance of having the land systems and the maritime systems at the same time for a country like India is very, very important. And that's where both GRSE and Yantra India Limited are headed to. Sir, your presence today and your words of motivation, especially the Paras Patthar for YL, has given us all immense significance, are of immense significance to this important milestone. In our journey towards strengthening India's defense industrial capabilities and advancing the vision of Atmanirbhar Bharat. YL is committed to Atmanirbhar Bharat, and right now almost 100% of our products are purchased from vendors in India only. There is no import as far as raw material is concerned. I am equally grateful to the Honorable Chief Minister of West Bengal for gracing this occasion and for his valuable support and encouragement towards strengthening the industrial and defense manufacturing ecosystem in the state. West Bengal was probably the pioneer. We are a small baby of 4.5 years or 5 years in existence with a legacy of 200 years. A contradiction in itself. We existed for 200 years, and the change that has come post-corporatization in the last 5 years is very much visible to the entire country, and the help that the government of India has done in this 5. We are here able to actually stand on this platform and proudly say that we are investing in big new projects. 2 months back, Raksha Mantri was there in Ambajari at Nagpur, and there we inaugurated a bigger project that was 800 crores investment in aluminium. And today, within a couple of months, we are once again on the platform investing another 750 crores, which is going to give a good boost to the industrial defense ecosystem here. I am also thankful to the Chief Secretary of West Bengal for gracing this occasion and also being the guiding light, enabling the defense infrastructure development in the state. I would like to express my sincere appreciation and gratitude to Shri Sanjeev Kumar, Secretary Defense Production, for his visionary guidance and continued support in strengthening indigenous defense production capabilities and facilitating the development of advanced manufacturing infrastructure. Sir rightly pointed out what's next is the call on our list also. Sir has always been pushing us that let us go further. So what next is the next question? Which platform are we going to go on? Thank you, sir, for that. I thank the DG Ordnance, Dr. J.P. Dash, for his gracious presence and witnessing the occasion. My sincere thanks also goes to Dr. Garima Bhagat, Joint Secretary Land Systems, and Shri Vijay Zade, Joint Secretary Naval Systems, for their valuable guidance, coordination, and continued support in taking forward this important initiatives and this particular function. Today's Bhumi Pujan, sir, and virtual unveiling of these projects mark the beginning of an exciting new chapter, as you said. The brownfield projects of GRSE at Raichak, Timber Pond and Damodar, along with the 2 projects, that is the 3,000-ton hydraulic die forging press and the radial forging plant at Metal and Steel Factory Ichhapur, a unit of Yantra India Limited, represent significant steps towards enhancing our indigenous manufacturing capabilities, technological strength and capacity to serve the nation's defense requirements. These projects are not merely about creating new infrastructure. They represent investments in India's strategic autonomy, advanced defense manufacturing capabilities, technological development, and a strong defense industrial base. I would also like to acknowledge the invaluable contribution of the Indian Armed Forces, the industry partners, our technology partners, and the MSME sector. The MSME are an indispensable part of our journey, of a greater journey towards self-reliance in defense production. The interaction with the MSME scheduled today as a part of today's program further underlines this commitment. A special word of appreciation to the officers, staff, workmen, and all the members of GRSE and Yantra India Limited, especially the heads of units and their teams of these 5 projects who have been tirelessly working night and day to make this program, who have joined us virtually today, whose dedication and professionalism and hard work has been instrumental
in taking these important projects forward and making these milestones possible. I also extend heartfelt thanks to all the distinguished guests and every single person who has taken time to be with us today here. Your presence has added significance and splendor to this occasion. In the end, I'd like to specially thank CMD GRSE and his team for making such wonderful arrangements and organizing this event in a befitting manner. Thank you, sir. And thank you all for making this occasion truly memorable. I end my vote of thanks with the following Sanskrit shloka, which is very famous. Shastram cha shastram cha dve pratipatye, shastrena rakshate rashtra, shastrena cha tadevihi. Both of us go together. The government and the defense manufacturers are together. That for the protection of the society, for the protection of the nation at large. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, you are now requested to please stand for the national song. अब सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने स्थान के समक्ष खड़े हो जाएं। Gentlemen, the national anthem shall be played now. All are requested to remain standing and service officers in uniform to salute the national flag as the national anthem plays.
Ladies and gentlemen, what we witnessed today is a game changer in indigenous defense manufacturing when Honorable Raksha Mantri ji, in the august presence of our Honorable Chief Minister of West Bengal, unveiled the capability expansion of two major DPSUs. देवियों और सज्जनों, आज हम स्वदेशी रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक युगांतकारी बदलाव की दिशा की ओर उस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने हैं जब पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा दो प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता विस्तार योजना का अनावरण किया गया। Ladies and gentlemen, we thank all guests joining us today. You're cordially invited to join us for lunch. Have a wonderful afternoon. देवियों और सज्जनों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोपहर के भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद।